So we are discussing representation of relief. And earlier I was telling you about the name of the book which we are following for this course. Although this is an old course, so it has a traditional and classical type of book. So the name of the book is, you guys have already written, I think, Map Work and Practical Geography. And the writer is Raghunandan Singh. Okay, so this is chapter number 5 from that book. Okay, so relief. How can we define relief? A change in elevation of an area, or we can say structure of an area on the basis of elevation. And elevation is the height of land from sea level. Okay, so this is it. And how do we represent? Because if, excuse me, if we talk about a map, so map is something which generally does not show the elevation until and unless we choose to show the elevation. Because when we have done the definition of map, we have seen that definition, or that map is a small scale diminished representation of an area as seen from above. So when we see any feature from above, it will show us the length, breadth, width of different features like buildings. If you see a building from the top, you will only notice its shape and the size which it's taking um, on a flat area if you see it from the top. And if you see any building from the top, you won't have an idea that how many stories are there, कितने फ्लोर्स हैं उस बिल्डिंग में. वो आपको टॉप पे या किसी पैराशूट में खड़े होकर आपको पैराशूट के अंदर बैठ के यू विल नॉट बी एबल टू नो द नंबर ऑफ फ्लोर्स ऑफ दैट बिल्डिंग. तो नंबर ऑफ फ्लोर्स एक बिल्डिंग के वो एक्चुअली वो शो करते हैं रिलीफ को के उसकी हाइट या एलिवेशन क्या है. सो एक मैप के अंदर हमें हाइट का पता नहीं चलता उस वक्त तक जब तक हम उसमें हाइट की इंफॉर्मेशन अलग से ना डालें. वो इंफॉर्मेशन हाइट की मैप पे किस तरह से डाली जाती है, दैट वी आर डूइंग टुडे, methods of representation of relief. So there are several methods by which we show the elevation or the relief, and the most common one is called as hachures. Then second one is contours. इसका नाम आप सबने पहले से सुना हुआ है in फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर. देन हाइट की इंफॉर्मेशन डालने का तीसरा तरीका है स्पॉट हाइट. देन बेंचमार्क, trig points, hill shading, layer contouring, or hypsometric tints.
So these are the different methods of representing relief on a map. अब ये मैप एक कॉमन मैप भी हो सकता है या एक रफ मैप भी हो सकता है. इट कैन बी अ रफ स्केच एज वेल. सो लेट्स सी व्हाट हैशोर्स आर. हैशोर्स, this is hashore. So hashores are drawn when someone is surveying an area and that person is there on that area at that time. आम तौर पे हैशोर उस वक्त बनाए जाते हैं जब सर्वे हो रहा हो. उसके अलावा भी हैशोर बनाए जाते हैं, बट सबसे पहला जो इसका यूज़ आया था या सबसे पहले ही जब हैशोर्स बनाए गए तो इट वाज मेड when somebody was on the field and taking record of the relief कि किस किस तरह की elevation है किसी भी given area के अंदर जिसमें वो गए. So what they did, hashures are generally small lines. These are small lines which are drawn in the direction of slope. जैसे किसी कोई हिल टॉप है तो उसका हैशोर किस तरह से बनेगा कि छोटी छोटी लाइंस, जैसे आप लोग अक्सर जब कोई डायग्राम बनाते हैं तो उसमें व्हाट यू डू इज दैट यू मेक सम टाइनी लिटिल लाइंस ऑन द बॉर्डर ऑफ एनी फीचर. आप कोई भी फीचर बना रहे हैं तो उसके बॉर्डर पे आप हल्की हल्की सी शेडिंग करते हैं पेंसिल से. छोटी छोटी लाइंस, तकरीबन आप समझ लें 1/2 सेंटीमीटर की आप छोटी छोटी लाइंस को ऐसे शेडिंग में करते हैं. या जब मेहंदी के डिज़ाइंस बनते हैं तो उसमें भी अक्सर डिज़ाइनिंग के दौरान वो छोटी छोटी लाइंस से फिलअप कर रहे होते हैं. सो हैशोर्स आर लाइक दैट. And how can you say that in proper wordings? These are small lines drawn excuse me, small lines drawn in the direction of slope. I'm actually looking for an image of hashore. All right, so okay, let me write its definition first. All right, hashores are small lines drawn in the direction of steepest slope. Okay, and how these lines are differentiated? Lines will be thicker if the slope is steep, and the lines will be thinner if the slope is gentle. स्लोप की ऊंचाई कम होगी तो लाइनें पतली बनेंगी और स्लोप की ऊंचाई ज़्यादा होगी तो लाइनें मोटी बनेंगी. ये पैटर्न है हैशोर का. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें when hashores are drawn in any map, its accuracy is less. इसमें कम accuracy होती है. Okay, so this is hashore.
And second one is contour. Um, if you remember your second semester in which you must have drawn contours to show different elevation. Contours are basically uh, the lines. Contours are lines drawn to show elevation. सो हाउ दोज लाइन हैशोर भी लाइंस हैं और कॉन्टूर भी लाइंस हैं, लेकिन हैशोर्स वो लाइंस हैं जो स्लोप की डायरेक्शन में, यानी अगर कोई एक स्पेसिफिक स्लोप है तो उसमें स्लोप का जितना बड़ा एक्सटेंट होगा उस पूरे एक्सटेंट पे स्लोप के पूरे फैलाव पर छोटी 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 लाइंस बनाई जाएंगी और लाइन की लेंथ जो होती है वो मोर और लेस सेम होती है. बट कॉन्टूर के अंदर द लाइंस आर लॉन्गर एंड वन लाइन shows places or points of similar elevation across a given area. अगर कोई एरिया है और उस एरिया के अंदर सिमिलर एलिवेशन पूरा एक्सटेंड कर रही है वेस्ट से और फिर नॉर्थ ईस्ट तक, तो एक लाइन वो पूरे वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक वो लाइन रन करेगी और उस एक लाइन का मतलब है कि वो सिर्फ एक ही एलिवेशन दिखा रहा है. और फिर दूसरी लाइन होगी तो दैट लाइन विल शो another elevation. So this is contour, and I'll give you the proper definition for contour. But before that, let me show you Hashor if I have it. Loading में time लग रहा है. So let's move forward. So contours are lines which connect places of similar elevation. Contours here are lines to show places or points of similar elevation. So contour का जो एक जनरल स्ट्रक्चर है, it resembles onion rings. जिस तरह से प्याज की लेयर्स परतें होती हैं, अगर आप अनियन को हाफ काटें तो इट हैज़ डिफरेंट लेयर्स, द कंसेंट्रिक लेयर्स, एक के बाद एक लेयर चल रही होती हैं. कॉन्टूर में भी बिल्कुल इसी तरह से फीचर होता है, क्योंकि हम अगर किसी ज़मीन के एक टुकड़े की बात करें, किसी भी एक छोटे से एरिया की भी बात करें, तो वहाँ पर हमें एलिवेशन डिफरेंसेस लाजमी मिलेंगे. सो व्हेन वी हैव एलिवेशन डिफरेंसेस दैट मीन्स के किसी भी कॉन्टूर मैप के अंदर एक लाइन नहीं होगी, क्योंकि एक कॉन्टूर लाइन एक हाइट को शो करती है. बट किसी भी एरिया के अंदर हाइट लाजमी चेंज होती है, बिकॉज हमें कॉन्टूर की ज़रूरत ही उस वक्त पड़ती है जब जहाँ पर एलिवेशन डिफरेंसेस हों. सो दैट मीन्स देयर विल बी मल्टीपल लाइंस इन अ कॉन्टूर मैप या कॉन्टूर चार्ट. उसमें मल्टीपल लाइंस होंगी और हर लाइन सिर्फ एक एलिवेशन वैल्यू को शो करेगा कि वो कौन कौन सी एलिवेशन वैल्यू कहाँ पर स्प्रेड आउट है. सो दीज आर लाइंस टू शो पॉइंट्स और प्लेसेस ऑफ सिमिलर एलिवेशन. ओके, contour lines have fixed interval in a map. There is fixed interval between contour lines कि अगर एक लाइन की वैल्यू 50 है तो दूसरी की 100 है, तो if one is 50, second one is 100, third one will be ultimately 150, and then the next one will be 200, 250, 300. तो contour lines have fixed interval एक मैप के अंदर of स्पेसिफिक मैप. फिर आप दूसरा मैप देखेंगे तो हो सकता है उसमें 100 का इंटरवल आ जाए. सो इफ़ देयर ऑन अनदर मैप अगर एक कॉन्टूर लाइन की वैल्यू 100 मीटर्स है तो सेकंड वाली 200 meters, then 300 meters, then 400 meters, so on and so forth. So it will have fixed interval between contours
ऑफ अ स्पेसिफिक मैप। एक मैप पे अगर कोई एक इंटरवल है तो उस मैप के अंदर हम दूसरा इंटरवल नहीं लिख सकते। इट शुड बी द सेम फॉर अ सिंगल मैप। अगर आप इंटरवल चेंज करना चाह रहे हैं तो यू विल हैव टू चेंज द मैप। सो एलिवेशन के अकॉर्डिंग इट चेंजेस। Okay, contours have some other properties. Let's see what those are. Um, these are lines, और इसमें जब lines आपको नज़र आएंगी तो कहीं कहीं पे lines will be closer। जहाँ पे lines करीब हों और बिल्कुल साथ साथ में हों, so उसका मतलब है slope is steep। When the lines will be closer, slope is steep. When the lines are farther, then slope is gentle। जैसी दूर दूर लाइनें होंगी तो वहाँ पर gentle slope होगा। So these are some of the common properties of contours। because अब हम आज के दौर में बात करें तो contour elevation representation of relief का सबसे important aspect है, सबसे important type है, because it is more accurate and it can give us more details। जबकि अगर हम बात करें हैशोर्स की तो हैशोर अब थोड़ा सा ऑब्सोलीट हुआ जा रहा है। ये सिर्फ वहाँ पर जहाँ पे मैनुअल मैपिंग की ज़रूरत पड़े या प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स ना हो तो वहाँ पर लोग हैशोर्स को करते हैं। बट कॉन्टूर्स आर वैलिड इवन नाउ एंड कॉन्टूर्स हैव इम्पोर्टेंस। हमारा एक अलग से टॉपिक भी होगा कि कॉन्टूर्स की कौन कौन सी टाइप हैं और हम किस तरह से डिफरेंट फीचर्स को यूजिंग कॉन्टूर्स शो करते हैं। ओके, सो दैट इज़ कॉन्टूर। और तीसरा फीचर है, you can see over here, it is spot height। So spot height is simple, it is the elevation of a single point, especially a mountain peak or a summit। किसी एक नुक्ते का, किसी एक जगह का जो हाइट बताई जाए, that is spot height। For example, height of K2, अगर हम एक K2 के सिर्फ किसी भी मैप पे K2 की पीक की जगह पर एक डॉट बनाएं, आमतौर पे स्पॉट हाइट के लिए ट्राइंगल बनाया जाता है, क्योंकि वो ट्राइंगल इट्स मोर लाइक अ टॉप ऑफ अ हिल और अ कोनिकल हिल। सो K2 को हम मैप पे मार्क करेंगे ट्राइंगल से और उसी ट्राइंगल के ऊपर उसकी हाइट लिख देंगे, तो वो कहलाएगा स्पॉट हाइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट टू आर benchmarks and trick points। they are kind of similar। यहाँ पर benchmark की अगर हम बात करें तो benchmark are elevation of single point। again contour भी एक ही पॉइंट का एलिवेशन था, benchmark भी एक ही जगह की एलिवेशन है और ट्रिक पॉइंट भी एक ही जगह की एलिवेशन है, लाइक एलिवेशन ऑफ इंडिविजुअल पॉइंट। ये तीनों वो फीचर हैं, लेकिन फ़र्क क्या है? स्पॉट हाइट इज़ जनरली गिवन फॉर हिल्स या किसी एरिया का हाईएस्ट रिलीफ इन एन एरिया इज़ शोन एज स्पॉट हाइट। इसके अलावा जितने भी मशहूर माउंटेन फीचर्स हैं उस पर भी आप स्पॉट हाइट बनाते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, K2 हो गया, नांगा पर्वत, या कोहे सुलेमान रेंज की जो हाईएस्ट पॉइंट है तिरचमीर। सो ऑल दीज आर हाईएस्ट एलिवेशन इन देयर स्पेसिफिक एरिया, तो वहाँ पर भी हम स्पॉट हाइट शो करेंगे। अब बेंचमार्क एंड ट्रिक पॉइंट्स ये इंडिविजुअल पॉइंट लिए जाते हैं एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाद। द इंडिविजुअल वैल्यूज टेकन आफ्टर अ स्पेसिफिक डिस्टेंस। कि हमें किसी एरिया की मैपिंग करनी है और उस पर हमें समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करें, तो जो स्टार्टिंग एक्सक्यूज मी, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से आप एक रीडिंग लेते हैं, उसके बाद आप कहते हैं हम रीडिंग लेंगे हर 50 मीटर्स के बाद या हर 100 मीटर के बाद या हर 1 किलोमीटर के बाद हम एक एलिवेशन वैल्यू लेंगे, तो वो या तो बेंचमार्क या ट्रिक पॉइंट्स।
Okay. So next is hill shading. Hill shading is also called as plastic shading. Oh, the spelling of hill shading. Just noticed it. It is also called as plastic shading. And this type of relief representation is made by using shadow. एक ऐसा relief map या एक ऐसी relief diagram जो features की shadow की base पे बनाई जाए. Like they select a time period. दिन का कोई सा भी एक time select करते हैं. Let me write that. Hill shading is made on the basis of shadow casted by features. दो जो shadow cast किए एक feature shadow cast करेगा उस shadow के according features in an area. So according to those shadows, they define that, okay, this is the rep, like we can say, this is the representation of relief in that given area. हिल शेडिंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है टाइम ऑफ द डे, बिकॉज जब हम शेडो पे वर्कआउट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वी विल बी नीडिंग सनलाइट फॉर कास्टिंग ऑफ द शेडो. तो हिल शेडिंग में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है टाइम ऑफ द डे, और टाइम ऑफ द डे के अकॉर्डिंग शेडो की लेंथ डिफरेंट होगी. सो हिल शेडिंग कांट बी डन एट नाइट, लेकिन अब इस दौर में व्हेन वी हैव सैटेलाइट्स एंड द यूज़ ऑफ इनविजिबल स्पेक्ट्रम, वेब गायर या रेनबो कलर्स के अलावा जो दूसरे हम स्पेक्ट्रम यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी बेसिस पर भी अब कुछ स्पेशलाइज्ड मैप के अंदर रात को भी हिल शेडिंग स्ट्रक्चर वो निकाल लेते हैं. बट मेनली it's the type of map which is made during the day, or they select for example सुबह 10 बजे का टाइम लिया होता है, एंड देन दोपहर 12 बजे का टाइम, देन शाम 3 बजे का टाइम. तो आमतौर पे ये 3 टाइम लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग शैडो की लेंथ कम या ज़्यादा होती रहती है. So this is hill shading, and it's called as plastic shading because इसके जो इसका जो स्ट्रक्चर आता है, इट लुक्स एज इफ अ प्लास्टिक इज मोल्डेड. जो प्लास्टिक के फीचर्स होते हैं उसमें ऊपर नीचे, अगर जैसे कोई लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ प्लास्टिक टॉय, तो उसमें सेम कलर होता है. द कलर इज द सेम थ्रू आउट इन अ कॉमन प्लास्टिक टॉय, और फिर उसको शेप किया जाता है. तो जो हिल शेडिंग होती है उसका कलर भी सेम, ऑल्दो वहाँ पे दरख्त हों या माउंटेन का कलर डिफरेंट हो, लेकिन ओवरऑल क्योंकि शेडो पे वर्कआउट किया जाता है तो उस पर सेम कलर ही थ्रू आउट रन कर रहा होता है, और वो कलर शेड कहीं पे डार्क कहीं पे लाइट अकॉर्डिंग टू शेडो एंड द लाइटेड पार्ट. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्लास्टिक शेडिंग. Then layer contouring or hypsometric tint, these are modified form of contours. जो लास्ट वाली टाइप है लेयर कॉन्टूरिंग या hypsometric tints, these are modified form of contours where every interval is shaded using different colors. के जिस तरह मैंने आपको बताया कि अनियन रिंग्स टाइप हैं, कॉन्टूर लाइंस अनियन रिंग्स की तरह होती हैं कि लाइनें एक साथ साथ चल रही होती हैं और वो फिर डिफरेंट डायरेक्शन पे वो टर्न हो जाती हैं, ट्विस्ट हो जाती हैं. तो जो लाइनों के बीच का गैप होता है एक कॉन्टूर के अंदर, वो गैप एम्प्टी होता है. बट हिप्सोमेट्रिक टेंट या लेयर कॉन्टूरिंग के अंदर दे फिल अप दैट एम्प्टी स्पेस बिटवीन two different contour lines. So that is hypsometric tint. And
and a contour. तो ये स्पॉट हाइट्स हैं। मैप्स पे स्पॉट हाइट इस तरह से शो की जाती हैं और सेम यही फीचर होगा बेंचमार्क और ट्रिक पॉइंट्स का भी, कि एक डेफिनेट डिस्टेंस के अंदर आपको सिंबल्स नज़र आएंगे और वो ट्रिक पॉइंट्स और स्पॉट हाइट का। नाउ contours. So this is a typical contour जिसमें आपको lines नज़र आ रही हैं. So here you see it's tinted over here. So this may be called as hypsometric tint or layer contouring. लेकिन इसमें सेंटर की जगह फिल्ड नहीं है। सेंटर की जगह अगर फिल्ड हो तो वो प्रॉपर लेयर कॉन्टूरिंग होगी। ओके, लुक एट दिस वन। The angle of okay, there's a question, I have just seen it. Will the angle of elevation also change along the time period of shadows? Yeah, yes, of course it will change. और season के according भी angle of shadow change होता है because of declination and subsolar points. Okay, look at this contour on the right side of the screen कि यहाँ पे लाइनें किस तरह डिफरेंट डायरेक्शंस में चल रही हैं। तो इफ़ वी सी दिस सेंट्रल पार्ट, ये जो सर्कल बना हुआ है और इसके अलोंग लाइंस हम अगर देखें तो दीज लाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। दैट मीन्स कि ये स्टीप स्लोप है और यहाँ पे स्लोप की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, स्लोप का एंगल ज़्यादा है। कंपेयर टू दैट अगर हम यहाँ पे देखें इस वाले पार्ट पे, तो ऑन दिस पार्ट द लाइन्स आर अवे, काफ़ी दूर दूर, काफ़ी डिस्टेंट है। इसका मतलब है यहाँ पे स्लोप जेंटल है, चढ़ाई बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है, और जहाँ जहाँ पर भी एम्प्टी स्पेसेस है दैट मीन्स कि ये फ्लैट एरिया है, स्पेशली देयर। और ये जो एक ट्राइंगुलर फिजेट स्पिनर टाइप का जो शेप है ये भी टॉप पे आके फ्लैट है और इसकी साइड पर यहाँ पे लाइंस बहुत करीब करीब हैं। दैट मीन्स कि ये एक स्टीप स्लोप है। और यहाँ पर if you see my pointer blinking, there we have gentle slopes. Okay, now hachures. So hachure is like that, you see, छोटी छोटी लाइंस बनाई हैं और वो डायरेक्शन ऑफ स्लोप शो कर रही हैं कि where the slope will go. There it is, these tiny little lines, और ये लाइन जिस डायरेक्शन में रन कर रही हैं वो डायरेक्शन स्लोप की है कि वहाँ से स्लोप नीचे की तरफ जाएगा। सो दिस इज़ अ हैशोर। दिस इज़ अनदर representation of हैशोर इस जगह पर। ओके, सो दिस इज़ हैशोर एंड यू सी, हमने बात की थी कि लाइंस अगर थिक होंगी तो स्टीप स्लोप होगा और लाइंस अगर थिन होंगी तो वो